wabarakatuh. Now, today's topic a bit different. It seems to be, but rather we are used to this one. Now, the topic says about erin towards Q miles. Erin towards Q miles. Now, I had just come across Mr. Modi has given chin towards Queen miles. So that just gave me this impetus, and I had taken and I have made a particular talk show for this in relation to psycho-spiritual neuroses plus DNA activation and vitalization, which will be related to resonance emotion, or this is emotive frequency therapy. Resonance emotive frequency therapy. Now let me break up everything. Now Erin, this is, my origin is from Arizona. So Arizona coming to India, that makes it Erin. Or you can call it air in. Okay. The air, which is the... I was wondering the term. So that is the air which is to in, and that is to circulate from the directions east, north, west and south. Okay, and we are going to make it a news: north, east, west and south. So now this is Q miles is quantum miles. Q stands for quantum, over which our whole universe, as well as we are also standing on that one, which has been given from the side of Einstein. The formula was E is equal to mc square. So now today's topic is related to that one. All the ailments, all the diseases, or any of the discomfort which we feel, or which you call it as a dis-ease. Disease is nothing else but it is dis-ease. That is based on E is equal to mc square. Now E stands for energy, m is mass, c is constant. So derived from there, from that formula, now this will be in relation to psychology, related to the conscience, that is universal consciousness, and further which comes inside and rotates over here, which is the crown chakra, and zoom comes to heart, where the air is there, which is the seat of manifestation. Whatever you desire, when you squeeze out the karma, or balance the karma, or curb out the karma, when the karma will be in a balanced order, the giving, the taking, the giving, the receiving, both will be in a balanced order. So there the karma's space as well as the karma, that is over. We are no more bound to that one, that karma or that action. Karma is nothing, it is a action, that is kriya. So with that process we are relieved. And this all thing is present in our DNA. DNA. In terms of patterns, patterns are nothing, these are the belief systems. Now the belief systems which we inherit into the family first, then into the neighborhood, then into the community, then further goes into the society, then to region, then to nation, then to international. Again it comes like this one. Okay, what we do in this process, we just shut this one, we just shut this one also, right? Why? Because this right hemisphere of the brain we don't use at all. We just work with the left brain, left brain, left brain, all logics. ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, नहीं ऐसा होना चाहिए था, नहीं उसने कहा था, नहीं मैंने तो सुना था. But what we experience, we don't see about that one, because the mob, the crowd, that is following some trend. So closing everything, which, see, the senses are given over here. So this is the focal point. Now this is and, this is and. So what it is been called as Brahmand. So this is whole is Brahmand.
Brahmand is not outside. This is over here, which Krishna has shown in Gita while giving the Upadesha to Arjuna. Right? Why? Because each soul comes with a purpose. Purpose is fixed. In order to evolve into the human journey, those are 7 only. One is to go on experiencing those ones, and likewise they just climb the ladder. 7 births only are there. In those 7 births, we have to fulfill the particular purpose of each birth which we have taken over here. Are all of you are comfortable in English, or should I switch over to Hindi? It's okay? Okay. So, हिंदी बोलूँ? बीच में बोलूँ, इतना समझ में आया? हाँ, okay. So, in order to evolve each step, the purpose, the ultimate purpose, that is 7 births. Within that, we have to rotate that cycle, and we have to go on working on that one through the process. What is the process? The process is karma. Now see, this is karma, this is karma, this is karma. Giving, receiving, giving, receiving. Just see, as smoother it will be, as smoother it will be, so your karma will be balanced. Means you are evolving over the births to that 7. It's not necessary. Maybe right now you have taken birth, straight away you can finish it off this one, balance it out this one, and you will be relieved from the cycle of death and birth. That is nirvana, that is moksha. Moksha is nothing else. मोक्ष जो है वो कर्म के बंधन से छूट जाना, मतलब कि जो हम दे रहे हैं, जो हम रिसीव करने वाले हैं, वो लेना और देना दोनों बराबर है. Now what is the theory of this one? This one works based on esoteric law. Now esoteric law says about what you give, that you receive in double the quantity. What you give, that you receive in double the quantity. So while performing any of the karma in terms of a process, in order to smoothen your life's path as well as further step up to the second ladder, this fundamental should be very clear to you. Now this all gets stored into belief systems. The DNA, which knows everything of your previous birth also, and where in future you have to lead in order to fulfill your that purpose. Birth will be 7, but the purpose will be same. So those experiences in your births, you have to take it and then go on. Where right now you have left, जहाँ आपने अभी छोड़ा है या जहाँ पर आप छूट गए हैं और जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, नेक्स्ट जन्म में आपका वहाँ से शुरू होगा. नाउ कैसे शुरू होगा? बिकॉज यू चूज योर पेरेंट्स, विच वूम, किधर आपको जाना है वो आप चूज़ करते हो, माँ और पिताजी चूज़ नहीं करते हैं. किस लिए? इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस, बिकॉज लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स फुल ऑफ एक्सपीरियंस. और कैसे है? लय में है, सुर और ताल में है. ठीक है, कौन से सुर और ताल? स से सा तक का जो है सुर और ताल ये लगता है, और इसी में पूरी जिंदगी है. नाउ लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल. ये मेरा नाम अनीता है, ठीक है. नाउ हर एक का एक मतलब होता है ना, पूछते भाई आपके नाम का मतलब क्या है करके. सो देयर इटसेल्फ द पर्पस शोज अबाउट. बीच में कई सारे आर्टिकल आए थे, नाम में क्या रखा है? नाम में ही सब कुछ रखा है, बिकॉज आवर आइडेंटिटी ओवर हियर इज बाय नेम. तो वो जो नाम है वो चरितार्थ करता है और सार्थक करता है आपका लाइफ का पर्पस. नाउ लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल अनीता. अब आप हिंदी में जब लिखोगे
तो इसमें जो आपका स्वर लगा है, अ का स्वर लगा है और लास्ट में आ का स्वर लगा है, ठीक है। अब ये कैसे चलता है आपका, वो जो व्यंजन है दोज कॉन्सोनेंट्स क से लेकर अंग तक, ये 5 हो जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर 5 ऐसे ऐसे करके वो चलेगा। तो उसमें ये जिसके ऊपर भी स्वर लगता जाएगा वो उसको वो उस टाइप का तीव्रता देता जाएगा और वो उसका पर्सनालिटी उस हिसाब से बना हुआ रहेगा, राइट। डेस्टिनी कुछ भी नहीं है, The vowels are giving frequencies. राइट। द वोवेल्स आर गिविंग फ्रीक्वेंसीज, उसके हिसाब से जो है ऑलरेडी प्री सेट है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इज व्हाट, ब्रेक इट अप, प्री, प्रेजेंट, प्री, सेंट, प्री, सेंट, ऑलरेडी इट इज सेंट। सो डेस्टिनी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रारब्ध में लिखा हुआ है जब समय आएगा तब होगा, नहीं, एवरीथिंग इज नाउ। अब जो आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पर आप जो गढ़ लेंगे, यहाँ पर जो आप समझ लेंगे, वही आप आगे ले जाएंगे। इसके 1 मिनट पहले, इसके 1 मिनट बाद कुछ भी नहीं है। यस, फॉर पास्ट वी कैन गो फॉर रेफरेंसेस। पास्ट में सिर्फ रेफरेंस के लिए जाना होता है, वहाँ से पिक करना होता है एंड आगे को बढ़ना होता है। वाई? बिकॉज देयर इज़ नथिंग राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ऊपर कोई नहीं बैठा जजमेंट के लिए। हम डरते हैं ना, भगवान देख रहा है, भगवान नहीं है, भगवान सब यहीं है। कितने चाहिए दर्शन करा देती हूँ, सब भगवानों के जो है यहाँ पे दर्शन करा देती हूँ। सो भगवान बाहर कहीं नहीं है। तो इसलिए जजमेंट जो है वो हम सामने वाले का नहीं कर सकते। हाँ देखा उसने क्या कर दिया, वो तो ऐसी ही थी, और तेरे साथ भी ऐसा किया। नो, दिस इज़ योर डेफिनेशन, ओके। सो जजमेंट हमारा खुद का हो सकता है, जजमेंट बाहर वाले का नहीं हो सकता है। इन बार्गेन हम क्या करते जाते हैं, ये जो इसको जो है, मैं हूँ आंध्राइत, बट जो है पली और बड़ी जो हूँ वो वाराणसी में पली बड़ी हूँ, तो शुद्ध हिंदी थोड़ा जो है ज़्यादा है। तो वहाँ की भाषा में बोलते हैं चर्रक चुर्रम, चर्रक चुर्रम। मतलब ये कि मैं एक कार हूँ, आप एक फ्रिज हैं, ये एक टेलीविज़न है, ये एक वॉशिंग मशीन है। कोई सिमिलैरिटी है? कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बट मैं जा रही हूँ आपके पास बताने के लिए, ऐसा हो गया, क्या करें। आपने अपने डेफिनेशन के हिसाब से मुझे बताया अनीता ये कर लेना करके, बट दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू मी, ओके। सो सिमिलर टाइप से या सिमिलर टर्म्स में the ailments or the diseases whichever are there, so उसका जो भी symptoms है, symptomology जो है वो सेम हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, कम मात्रा में भी हो सकती है, ज़्यादा मात्रा में भी हो सकती है। उसका जो उसका क्या बोलते हो, हाँ अर्थ नहीं, उसको क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं फिट होगी, इसमें वो है मतलब उसका जैसे कोई एक ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रहा है तो पोटेंसी उसकी पोटेंसी कम या ज़्यादा, मात्रा जो है कम या ज़्यादा हो सकती है, बट सेम जो मेडिसिन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, सेम मेडिसिन एप्लीकेबल नहीं होगी। वाई? बिकॉज योर ओन एक्सपीरियंस, यू हैड टू कम आउट ऑफ दैट वेयर यू हैव ब्लॉक्ड योरसेल्फ। आपने अपने आप को इस माया से, इस माया में ये बोलते हुए कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि सब ब्रह्मा का क्रिएशन है, सो वी आवरसेल्व्स आर गॉड, GOD, बाहर कहीं नहीं है। G इज़ जनरेटर, O इज़ ऑब्जर्वर एंड D इज़ डिस्ट्रॉयर। सो वो उसमें चलता है। अब मैंने यहाँ आपसे कहा था अनीता, जो नाम का जो है आपको स्वर और व्यंजन जो बता रही थी, तो न जो है वो इटसेल्फ तीव्र पोटेंसी में है, न जो है। इसीलिए जब भी जितने भी ये बोला गया है कि भाई आप पॉजिटिव बोलो, नहीं बोलकर स्टार्ट नहीं करो, क्योंकि न ह जो है ये आपका विशुद्ध चक्र है, इटसेल्फ पोटेंसी वाला है ह, उसमें बड़ी की मात्रा और उसमें बिंदु वो टोटली नेगेटिव बना देता है। बिकॉज द यूनिवर्स इज अ कंप्यूटर, उसे ये नहीं पता, उसकी लैंग्वेज सेम है जैसे अपनी है। ये जो कंप्यूटर में हम कर रहे हैं 010101 उस पर वो वर्क करता है, बाइनरी पे वो वर्क करता है, एनालॉगिंग एंड डिजिटल उस पर वर्क करता है। सो दैट डजंट नो, उसको नहीं पता है आप किसके लिए बोल रहे हो, खुद के लिए या सामने वाले के लिए,
उसके पास सिर्फ ये है तथास्तु तथास्तु, ओके, योर विश माई कमांड, योर विश माई कमांड। सो वो देता चला जाता है और आप किस पे देते जाते हो, बाहर वाले पे, कि उसके कारण ऐसा हो गया, घर में ऐसा माहौल था, ये वैसा हो गया, शायद मैं ऊपर से लिखा के लाया हुआ था, वो उसमें आपका चला जाता है। तो अब ये जो है अनीता में जो है त भी जो है वो भी तीव्र उसमें है, ठीक है। आ की मात्रा पीछे है, मतलब प्रीफिक्सिंग एंड सफिक्सिंग। सो अनीता का मतलब है जिसका ना आदि है न जिसका अंत है। सो ना आदि ना अंत, इसका मतलब क्या हुआ? That is infinity. That is infinity. So वो उसमें इस हिसाब से चल रहा है। अब इसी को जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो इसमें कुछ वो करके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से वो बनाते हैं, ठीक है। वो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी बता दूंगी, पर आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक जो है ये है, इस पे हम चलते हैं। इतना समझ में आ गया? नाउ ये इमोटिव है, जो इमोशंस हैं सेंसेस के द्वारा परसीव की जाती है। हार्ट उसका सीट है। अगेन हार्ट का जो एलिमेंट है दैट इज़ एयर। सो एयर को कोई भी बांध के नहीं रख सकता। एयर ना तो बंधती है ना बंधने में आती है, तो उसे कोई नहीं रख सकता बांध के। जब हम उसे चोक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो वी गेट all these ailments, all these diseases. Now the word disease itself says this is ease, this is ease. So इसका क्या मतलब है कि हर वो प्रॉब्लम, अब हम चिढ़ जाते हैं, भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, जब ये पूछा जाए तो हम चिढ़ जाते हैं। So it means every problem has a solution in itself. So जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथमेटिकल लाइफ इज अ permutation and combination based on mathematical calculations. Basically algebra and geometry से के combination से ये चलता है, ठीक है। तो इसमें जो ये calculation जो है सेम वही है, माइनस माइनस उधर प्लस होता है पर इधर डबल में पुल करेगा। What I said एसोटेरिक लॉ है, receiving will be in double the way. So एक माइनस माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि जो दाहिना हाथ कर रहा है वो बाएं हाथ को ना पता चले, और जो बायां कर रहा है वो दाहिने को ना पता चले। वाई? टू बैलेंस इट। नहीं तो क्या होगा, ये कर्म किया कितना फल आ रहा है, क्योंकि डबल में मिलना है ये तो मालूम है, कितना डबल में आने वाला है, हाँ आया ही नहीं तो क्या हो गया, देन वी स्टार्ट कर्सिंग। सो यहाँ पे सारा खेल बिगड़ जाता है, सो ब्लॉक हो जाता है। और उसके सेंटर्स ये हैं, बिकॉज सी ये देखिए आपके रडार्स है जो एनर्जी को जो है अंदर आपके जो है किसके द्वारा, फ्रीक्वेंसी, मीन्स एनर्जी इज नथिंग एल्स, इट्स रेजोनेंस। डिजोनेंस पे जब हम काम करते हैं, स्वर बराबर नहीं लगते हैं, तो वो बॉडी का वो पार्ट सारे गड़बड़ा जाते हैं। और सिम्टम्स दिखते तो हैं, 3 चांस हर चीज़ के मिलते हैं, ऊपर से गाइडेड 3 चांस मिलते हैं, क्लियर कट दिखाए जाते हैं, बट हम उसे इग्नोर करते जाते हैं, तो फिर वो पाइलअप ब्लॉक होते हुए पहले छोटे में दिखाएंगे, क्योंकि बॉडी ही हमें दी हुई है ये पार्ट जिसमें कि वो रिफ्लेक्ट होगा, और उसके बाद में वो जो है पूरा विभत्स जो है शेप ले लेना शुरू कर देता है। नाउ ये इस हिसाब से हम चलते हैं इसको। मैं आज आपको जो देने जा रही हूँ, synergizing, pulsating, harmonic, rhythmic symphony of resonance by synthesizing through ancient science, modern science, digital science towards an amalgamation of quantum science. मैं आज ये 4 चीज़ें जो है वो amalgam करने वाली हूँ। पहला है ancient science, दूसरा है modern science, तीसरा है डिजिटल, जिस वर्ल्ड में आज हम रह रहे हैं, डिजिटल एरा जिसको बोलते हैं, और फिर ये क्वांटम साइंस से मिलाने जा रहे हैं। क्वांटम साइंस मैंने जैसे कि आपको बताया, एवरीथिंग इज E इज इक्वल टू mc²। सब चीज़ कांस्टेंट है, वी आर ऑल्सो कांस्टेंट। हम चल नहीं रहे क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इसलिए वो हमारा मूवमेंट हो रहा है, हम तो फ्लाई कर रहे हैं।
हम जो हैं वो सारे फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस में जो है, जो स्पेस है और जो टाइम है उसमें हम फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण ये पैर जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। अब ये कैसे हैं, फर्म फीट हैं या जस्ट खड़े हैं, वो देखना है उसमें। तो सिनर्जाइजिंग का मतलब क्या है, उसको मिक्स करना। जब आप मिक्स करोगे तो वो एक अच्छा सा धुन निकालेगा। पल्सेटिंग का एक होता है ना, बड़ा स्वाद आता है। कई कई गाने, रफ़ी के गाने, आशा भोसले, लता मंगेशकर के गाने कितना अच्छे लगते हैं, तो वो दैट इज़ पल्सेट करता है। वाई? बिकॉज इट्स इन अ हार्मोनिक वे प्लेड आउट, मीन्स सारे जितने भी सुर हैं वो सब बैलेंस में लगाए हुए हैं। उसके बाद जब ये बैलेंस में होता है तो इट विल रेजोनेट व्हाट, अ रिदम, एक लय। आप खुद ही टैप करने लग जाते हो, आप खुद ही आपका सर जो है ये हिलने लग जाता है। तो ये जो सिम्फनी है, ये इसको मैंने वीव किया है, इसको किसमें, एंशियंट साइंस में, मॉडर्न साइंस में, डिजिटल साइंस में, और बेस इसका दिया है क्वांटम साइंस का। तो क्वांटम साइंस के बेस में आपका क्या आ जाता है, साइकोलॉजी, देन न्यूरोलॉजी, दिस इज ब्रेन, एंड देन कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, ये वहाँ पर आ जाता है। ये सब का बेस कहाँ पर है, डीएनए में है, जो मैंने बोला, जो भी पैटर्न हमने रख लिए हैं। अब लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट है। अब ये महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्रियंस का है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि महाराष्ट्रियंस यानी जो मराठी जो लोग हैं, बट क्यों नहीं सारे के सारे महाराष्ट्रियंस जो हैं, जब कल्चर तो एक ही है, धरती भी एक ही है जिसपे वो है यहाँ पर, है ना, तो वो क्यों नहीं एक ही, हर फैमिली क्यों नहीं एक ही तरह का ट्रेंड में चलता है, अलग अलग क्यों है, अलग अलग क्यों हैं, एक होना चाहिए ना, तो अलग अलग क्यों हैं। सो व्हाट इज दैट, दैट इज द बिलीफ सिस्टम in terms of the pattern which they have infused in themselves being a family. सबसे छोटी यूनिट है फैमिली सोसाइटी की, तो उस फैमिली में ये ट्रेडिशन में चला आ रहा है। अब उसी को जो है ये नाम दे दिया गया है डिजीज़ेस के ऊपर कि ये तो जेनेटिक डिजीज़ है। सो मैं उस पर भी एक रिसर्च कर रही हूँ जिस पे मैं ये नेगेट करती हूँ कि जेनेटिसिज्म कुछ भी नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेम बिलीफ सिस्टम्स, सेम पैटर्न्स उस फैमिली को हस्तांतरित होता चला जाता है और उसको वो सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशन में चला आ रहा है। एंशिएंट से पास्ट में जाते हैं, वहाँ से उठा के अभी प्रेजेंट में ले आते हैं और उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। इट वोंट बी एप्लीकेबल। हाँ, रिस्क, राइट, Human race. Oh, race. हाँ, race is different. Race theory is this different. Race theory I am not talking about right now. Just for a family, when it is stated that, okay, let's take for an example diabetes. It's in my genetics. So this one is known as genetic disorder. But I am researching on this. There is nothing as such, because if you forego those patterns, those belief systems, so it will be not seen. तो वो वहाँ पे बैरियर लग जाएगा। Miss, those you mean those pattern of particular disease? Yes. Is created, not it is Yes. carried It forward. no. Yes, by the thoughts. By the And thoughts. every family has Yeah, particular the set of thoughts goes into or converts itself into belief system, and that belief system is a pattern. The pattern is very much in ourselves. Now let's take for an example. एक चलो ऐसे ले लेते हैं, एक कपल जो है वो चढ़ रहा है, ऑटो रिक्शा में चढ़ रहा है और रिक्शे में बैठा ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, उसने बस आराम से रिक्शे वाले ने पूछा कि भाई कहाँ जाना है, और इनका जो आंसर आया, रेजोनेंस कैसे हो रहा है वो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। इन्होंने कुछ आंसर दिया और उसको बिल्कुल भी वो बॉडी में जो है वो बराबर लगा नहीं उसको, और उसने पलट के कुछ ऐसा आंसर दिया कि इनको उसके ऊपर शाउट करना पड़ा और वहाँ पे तू मैं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सबरे लोकल में चढ़ रहे हैं और आम लोकल में जितने भी आप देख लो, सबर्ब की हो, इधर की हो, उधर की हो, वेस्टर्न की हो, सेंट्रल की हो, मारा होती, कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, बट सुबह सुबह हो जाती है।
सो वो सामने वाले का गलती नहीं है, जिसके ओर से शुरू हुआ है दैट पैटर्न इज वेरी मच इन दैट, उसमें खुद में है। But it is influenced by external factor. वो देते क्यों हैं हम? पीछे से आ गया तो हम क्या No, करें? it is actually पीछे से नहीं आता। frequencies are not matching ना। सामने वाले को और इनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो नहीं, रहा है ऐसे हो compact नहीं में। होगा। जब भी हार्मोनी होगी ना, क्योंकि वी ऑल आर सोल, Yeah. हमारे में कोई डिफरेंस है ही नहीं। जो इस वक्त आप जो सारे हैं वो मेरा रिप्लिका हैं, और आप सब का रिप्लिका मैं हूँ। इसीलिए हम यहाँ पे अभी सब गैदर हुए हैं, मतलब सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो इसलिए हुई है ना। अभी आप एक एग्जांपल में देख लो कि आप 1 2 3 4 आते थे पहले, आज अभी और आ गए हैं। चलो इसके लिए आ गए हैं, सुनने के लिए, बट कुछ चीज़ जो है वो लेके आई, मतलब कि वो जेलिन हो रही है, सेम फ्रीक्वेंसी में जो है हम वो चल रहे हैं, तो वो रेजोनेंस जो है वो हो जाता है उसमें, ठीक है। But suppose if there is a breakup, suppose somebody is going by the, suppose example लेके रोड से जा रहा है, एक आदमी बाजू से आया, उस धक्का पर्पसली नहीं मारा, धक्का लग गया। अभी this is somebody else, suppose आता था, उसका धक्का नहीं लगता था, do you mean that way? अभी आधा आपने बोला, अब आधा आधा मैं आई और मेरा धक्का आपको लग गया। अभी मैंने आपसे क्या बोला धक्का लगते ही? सॉरी अंकल, प्लीज़ प्लीज़, सॉरी 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 सॉरी। अभी आपने क्या किया? आपने घूर के देखा, ठीक है। अब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इस पे है कि नहीं, मुझे इन्हें इस वक्त मैं फॉरगिव दे रही हूँ आपको, और मैं आपको जो है वो हारमोनियक उसमें ला रही हूँ, तो आप तो उतना भी नहीं बोलोगे, आंख भी बड़ी नहीं होगी, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। But that is because of the behavior, बिहेवियर नहीं है ये, frequency का। वो फ्रीक्वेंसी है। But the reaction It's is not dependent reaction on also. us. The हाँ? opposite reaction is dependent on our. जैसे हाँ। गुस्से से एक गुस्सा मिनट, बढ़ता है। मैं आपको इसका एग्जांपल न्यूटन के थर्ड लॉ से दे देती हूँ। व्हाट इज द थर्ड लॉ? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नाउ इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। नाउ एक्शन इज व्हाट? क्रिया परफॉर्म हो गई, कर्म हुआ, ये तो प्रोसेस में चली गई, है ना। अब इसका जो है आना क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अगर मैंने सॉरी सॉरी बोल के प्लीज़ 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 किया, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? कोई बात नहीं बेटा, दिस इज़ ऑपोजिट, ठीक है। और अगर मैं जो है यूँ बॉडी लैंग्वेज दिखाया और निकल गई, क्या है? दिखता नहीं है, आंखें दी है, Anger creates anger. एंगर नहीं क्रिएट कर रहा है, दिस एरोगेंस जो है। तो पैटर्न मेरे में था ना, एक तो मेरी गलती थी, आंखें सामने से देते हुए भी मैं जो है दौड़ के चली आ रही हूँ और आपसे धक्का खा गई, और आप तो सीधे चले आ रहे हो। तो स्टार्ट मेरे सिवा मीन्स पैटर्न मेरे में है। सो क्रिएशन इज नॉट आउटसाइड, क्रिएशन इज फर्स्ट विद इन। सो दैट्स वाई चेंज इज नॉट आउटसाइड, चेंज इज विद इन। आप अपने आप को चेंज करोगे तो बाहर सारा सराउंडिंग्स अपने आप चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, ये ऑलरेडी कोडेड है। सी, कुछ भी नया क्रिएशन में नहीं है, नया जो भी क्रिएट होता है कॉम्बिनेशन में एकदम नया क्रिएट हो जाता है। नाउ लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, एंशिएंट साइंस पहले भी था, चला आ रहा है, उसके बाद जो बाकी सारे मैंने वीव किए हैं वो सब चला आ रहा था, जो मैं बता रही हूँ वो भी सब कुछ पता है, बट जो क्रिएशन हुआ वो एक नया हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, परमानेंट हो गया। अब यही चीज़ आप मुझसे सुन के जा रहे हो और सेम आपको बताना पड़े तो सेम चीज़ क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो वी ऑल आर को क्रिएटर्स। You add something and आपका ना पर्पस ही वही है, इवॉल्व होने के लिए क्रिएशन करना। सो वो जो है ऑलरेडी कोडेड है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसको फर्दर उसमें बैठाना है तो कोडिंग हो जाएगी, इसको ब्रेक करना है तो डी कोडिंग हो जाएगी, एंड उसको जोड़ देना है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से। सो ये दिस इज़ द मोड with which I am going to explain. Now with special reference, मैं आज दो जो है वो आपके छोटे से डिस्कम्फर्ट ले लेती हूँ, डिजीज़ तो नहीं है ये। एक है कि बहुत यूरिन आती है,
अनकंट्रोलेबल जो है यूरिन आती है और ठंड लग रही होती है, तो उसका क्या है वो मैं इसमें बैठा करके वो आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो आगे, कुछ और पूछना है? नाउ इसको जो करना है, दिस इज गिवन एज द नेम एज न्यू साइंस मोड। न्यू साइंस, quantum science is a very new science which is originated from the biology जो अपनी बायोलॉजी है, उस किसकी बायोलॉजी, बिलीफ्स की बायोलॉजी से ये ओरिजिनेट किया हुआ है। एंड इस पे जो है ये बिलीफ या पैटर्न जब हम बदल रहे हैं तो ये वाइटलाइज हो जाता है। इसको एक्टिवेट करने का डिफरेंट मोड है, बट वाइटलाइजेशन फॉर द पर्टिकुलर पर्पस स्टैंड होने के लिए ये हो जाता है। बाकी मेरे वर्कशॉप में आइएगा तो मैं वो आपको करा दूंगी। नाउ ये जो है कहाँ से चल रहे हम, सेकेंड स्टेप इज़ व्हाट, अभी हम खड़े हैं स्टिल मोड पर। अच्छा दिया हुआ है ना वो, चलो वही पढ़ रहे हैं। कितने बार हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, पर कभी देखा नहीं व्हाट इज़ इक्वल एंड व्हाट इज़ ऑपोजिट एंड व्हाई इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। और ना ही ये देखा कि जो दे रहे हो वो डबल द वे में आएगा। सो व्हाट इज विच गोज दैट कम्स बैक। सो जो हम दे रहे हैं वही तो हमारे पास आ रहा है। ये आप चल के आए और ये आप चढ़ने की स्थिति है, पर क्या ये मैं चढ़ रही हूँ? स्टेपिंग ये अप है, चढ़ने के लिए यूँ करना पड़ता है, पर प्लेन इस पर भी तो यही तो चल रही हूँ। दिस इज गोइंग डाउन, पर क्या मैं नीचे उतर रही हूँ? नो, बट सी अगेन आई हैव टू क्लाइंब। ये क्लाइंब कर रही हूँ, यहीं पे हूँ। सो विच गोज दैट कम्स बैक। तो स्टिल मोड है, इसको आपको क्या करना है, लाइफ मोड में लाना है। अभी लाइफ बिल्कुल भी जो है वो लेथार्जिक हो गई है, एकदम से जो है अच्छी नहीं लग रही है, टेस्टलेस हो गई है, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। हाँ भाई ओल्ड एज हो गया है, तो उसको जो है थोड़ा सा ट्यून करना है और उसको झकझोरना है। एंड देन इसको आप रिसीव कैसे करेंगे, अटेंटिव मोड को जो है वो कन्वर्ट करेंगे रिसेप्टिव मोड में। नाउ व्हाट इज अटेंटिव मोड एंड व्हाट इज रिसेप्टिव मोड। जब भी आप अटेंशन लगाओगे, फोकस जब भी करोगे तो सब इन होंगे, नहीं ये ऐसे क्यों लिखा है, ये ऐसा क्यों है, बाकी सब चीज़ें दिखेंगी, जो मेन है वो नहीं दिखेगा। सो आई एम सेइंग कि अटेंशन जो है इसको शट करो, रिसीविंग मोड को खोल के रखो। सो एवरीथिंग विल गो इनसाइड एंड यू विल कम टू नो वेरी इजीली व्हाट इज दैट। दिस आई हैव अमलगमेटेड एंशिएंट साइंस में त्रिधा है। त्रिधा मतलब वो जो ताल होते हैं ना, जो ताल है वो तीन उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ व्हाट इज दैट, द वेरी फर्स्ट वन इज योर सेल्फ, your own self where your soul resides, that is स्वादिष्ठान। उसके बाद आता है आपका हार्ट, अनाहत। सो उससे जो नाद निकलता है दैट इज अनाहत नाद। यहाँ से जो नाद निकलता है, नाद मीन्स जो स्वर निकलता है, दैट इज बिंदु नाद। बिंदु नाद ये है आपका अनाहत नाद। और ये जो है आपका, ये जो थर्ड आई का जो है ना, तो इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ मर्ज करना है, इसको यहाँ मर्ज कर देना है। यहाँ से जो गवर्न करोगे आप अपने आप को, तो वो रिसेप्टिव मोड में होगा। देन त्रिफला, ये कैसा होगा, तीन फल देने वाला होगा। त्रिफला तो आप सबने सुना हुआ है, त्रिफला क्या चीज़ है। एंड देन त्रिमूर्ति। सो त्रिमूर्ति इज व्हाट, गॉड। वी आवरसेल्व्स आर गॉड, GOD, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा हम सब कहते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो हमारा ही क्रिएट किया हुआ है, उन्होंने थोड़ी ना भेजा हुआ है। उनका क्रिएशन बहुत ब्यूटीफुल है, उन्होंने ये चीज़ें नहीं भेजी हुई है। हम किसी को जो है वो चलते हुए धक्का दे रहे हैं, किसी की टांग खींच रहे हैं, किसी से जेलसी कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, हमें ही लग रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा। और बार बार हम ये सोच रहे हैं अरे कितना बढ़ गया, मैं तो इसको इतना कोस रहा था, फिर भी देखना हाँ ज़रूर इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है। तो वो वहाँ पर आपका खुद को ही, yes, it comes back to you only, not some form, very much it comes back to you only। तो ये त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट जो हो गया।
नाउ दिस आई हैव गिवन द नेम एज इसरा। नाउ मैं जो है सारा इंस्पायर्ड हूँ ग्रीक लेटर्स से, इसलिए मेरी जो एकेडमी है उसका नाम भी है यूज़र एकेडमिया ऑफ नॉइसिस एंड यूफिस। यूज़र का मतलब है लाइट, ब्रिलियंस एंड ग्लो। अगर आप हिंदी में उसे देखेंगे तो सत्य, चित और आनंद, और प्योर संस्कृत में देखेंगे तो सत्यम, शिवम, सुंदरम। जो ट्रुथ है वही शिव है और वही सुंदर है। सुंदर इज़ व्हाट? ब्लिसफुल, विच विल गिव यू हारमोनी, विच विल पल्सेट यू। आपका रेजोनेंस जो है वो बराबर जो है सिम्फोनी में चलेगा। सो ये इसरा है। इसरा का मतलब है कि ये पूरा यूनिवर्स का जो जर्नी होती है, अगेन इट्स ए ग्रीक वर्ड, सो उसकी जर्नी के ऊपर ये है। तो मतलब आपको तो सारी जर्नी करा ही रही हूँ अभी ये, तो इसके लिए ये वाला बनाया हुआ था मैंने। अब ये जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हम शंख बजाते हैं ना, श्री गणेश जो करते हैं, शंख का आह्वान जब हम क्या करते हैं, शंख जो है वो ये आपकी शंख मुद्रा है, ये यहाँ पे रखना है एंड ये आपका है। इसे भी आप जब रोज करेंगे, ये देखिए, ये आपका राइट हैंड, ये आपका थंब, ये बिंदु हो गया, इसे आपको यहाँ बीच में रखना है, इसे बंद करना है, इसे कवर कर देना है, इसे यहाँ लगा देना है। यस, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, हमारा शिव और शक्ति का मिलन। हम सबका कॉन्सेप्ट जो है अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, तो ये है शिव और शक्ति का मिलन। जब भी कोई क्रिएशन होगा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ऑलवेज दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस। शिव और शक्ति के मिलन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शिव और शक्ति के मिलन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जैसे अ से आ अगर करो, बीच में नी बड़ी की लगाई नहीं होती तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो शिव और शक्ति जो है उसका कॉम्बिनेशन है। तो शक्ति में मीन्स छोटी ई की मात्रा है ना, वो हटा देंगे तो वो शव है। सो इसी तरह से हमारे पास भी जो है वो क्या है, ये 3 नीचे के जो है मैस्कुलाइन हैं और ये 4 ऊपर के जो हैं ये आपके फेमिनाइन हैं। तो यही कुंडलिनी जो है रेज होती है। ये भी आप वर्कशॉप में आइए तो ये पूरा आपको करा देती हूँ। तो ये जो है ये पूरी रेज होती है जो, ठीक है। नाद ब्रह्म क्या है? नाद मतलब जितने भी सुर लगे हुए हैं, स से सा तक का जो भी है, मात्राएं जो भी लगी हुई है, उसमें दैट रेजोनेट्स। तो उसका जो सबसे पावरफुल जो वो है रेजोनेशन का, दैट इज ओम। अ उ म, अ उ म, अंदर जाना है, उ 33 33 33 33 33 33, उसमें आपको प्रोनाउंस करना। पूरा का पूरा बॉडी वाइब्रेट हो जाएगी और गर्म हो जाएगी, जिससे ठंड वगैरह लगती है। और अगर ठंड लग रही है तो ये सिर्फ ये जो है आपको यूँ रखना है, हल्का सा, ये सिर्फ टिप्स को जो है हल्का सा रखना है और यहाँ रख दीजिए और आंखें बंद करिए। बिल्कुल रेड कलर देखिए, बिल्कुल रेड कलर देखिए। 2 मिनट में बॉडी गर्म हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, यहाँ 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 ये, यस यस यस, नाभि पे नहीं, ये हल्का हल्का सा बस टच करना है और इसको यहाँ पे यू रखना है जी, एंड रेड कलर देखना है, ठीक है। और कभी भी ये क्रॉस नहीं करिएगा। रेड कलर देख के क्या यहाँ मर्ज करना है या कुछ नहीं, आप बस यहाँ पे रखिए और रेड एकदम जितना रेड देख सके उतना रेड देखिए। 2 मिनट में बॉडी पसीना देने लग जाएगी। बहुत ठंड लग रही है अगर, या फिर एनर्जी कम आपको लग रही है तो आप ये कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा ना करिए, ये आपकी गर्म हो जाएगी। उसके बाद नाद बिंदु, उसी में सब कुछ चल रहा है। ये जो नाद है, जो घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ जो ऊपर जो काफ़ी लोग पहुंच चुके होते हैं, वो है अनाहत। इसका जो नाद है ये वो धक 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 जो करता है, इसका अलग सा सुरीला नाद है। हार्ट का जो है वो अलग नाद है। और फिर शब्द, यस, एंड शब्द नाद। शब्द नाद का क्या है? ऑल कम्युनिकेशन, सारा कुछ तो कम्युनिकेशन के ऊपर ही है ना। अब ये भी जो मैं कर रही हूँ कम्युनिकेट ही कर रही हूँ, बट कम्युनिकेशन के 3 एस्पेक्ट्स हैं। वो 3 जो एस्पेक्ट्स है या पिलर्स है, उसके ऊपर कम्युनिकेशन है। तो उसको ये हमें शब्द चाहिए,
मीनिंगफुल जो है लेटर्स को हम वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और फिर वर्ड को हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, अगर इसको ऐसा बोलते तो कितना अच्छा रहता, मुझे हर्ट भी नहीं होता, मम्मा मेरा काम भी निकल जाता, मम्मा आप तो ऐसे ही बोल देते हो। सो वो शब्द है। सो उसका जो 3 वो है वर्ड्स, फर्स्ट पिलर इज वर्ड्स, सेकेंड पिलर इज टोनल एंड द थर्ड पिलर इज बॉडी लैंग्वेज। इसका कॉम्बिनेशन है कम्युनिकेशन। मैं टॉक नहीं बोल रही हूँ, टॉक वही होगा, ये जो है फ्रिज बोलेगी गैस से, गैस बोलेगा जो है वॉशिंग मशीन से, और वो फिर टीवी से। उसका कोई भी अपने अपने रेजोनेंस पे है वो, तो उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। वाई? बिकॉज हम जितने भी यहाँ हैं वी ऑल आर पार्टनर्स, पार्टनर्स यूनियन बनाते हैं। सो पार्टनरशिप के जो रूल होते हैं उसको फॉलो कर लीजिए, लाइफ बड़े आराम से चल पड़ेगी। सो फिर ये मोह नहीं होगा, फिर उससे गुस्सा नहीं होगा, फिर उससे जो है आपको वो नहीं आएगा कि भाई इसने एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, एंड अनकंडीशनल लव में चला जाएगा। जैसे ही अनकंडीशनल लव होगा, ये हार्ट का है, एयर जो है पूरी की पूरी इन हो जाएगी यहाँ पर, एंड आप इसके कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर जो डिज़ायर करेंगे वो आपके सामने, दैट इज़ मिराकल। एंड त्रिनाद, त्रिनाद जो है वो जितने भी ताल हैं वो 3 उस पे ही बने हुए हैं। कॉम्बिनेशन है ना, ताथा धिन्ना, ताता थैया, तक धिना धिन, ये जो 3 बस इस पे है ना, इसी पे सारा बना हुआ है। अब पीछे के देख लीजिएगा, न उसका कितना इम्पोर्टेंस है, या य का कितना इम्पोर्टेंस है। य इज़ अगेन अनाहत चक्र का है जो बीज मंत्र है। सो उसका कितना वो है, तो उसका कैसा निकलेगा नाद। एंड देन ताक धिना धिन, ताता थैया, और थर्ड वाला क्या बोला था, ओके याद आता है तो बोलते हो। ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये जो मैंने बताया था कि 2 जो मैं आपको बता रही हूँ, एक जो यूरिन का काफ़ी सेंसेशन होता है, सो जो ब्लैडर है उसका किस लिए बराबर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। अभी हमारे यहाँ पे जो है ये जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, कितने एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। ओके, तो हर एक के पास एक एक ग्लैंड्स हैं। तो एलिमेंट कहीं बाहर से नहीं आई है, सारी की सारी साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स हैं। 98% जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिजीज़ेस हैं, वो सारे के सारे साइकोसोमैटिक हैं। साइकोलॉजिकली वो इन हो जाते हैं, साइकोसोमैटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फिर बॉडी पे वो अपना खेल दिखाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए दवा कहाँ से होगी? इसीलिए कोई भी दवा जो है वो साइड इफ़ेक्ट देती है। साइड इफ़ेक्ट क्यों देती है? क्योंकि रूट तक तो जाती नहीं, वहाँ उसको जो है दबाने की कोशिश करती है। रूट का पता ही नहीं है, एजम्पशंस पे चलते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, या फिर आयुर्वेदा हो, या फिर जो दूसरे जो भी मेडिसिन्स निकले हुए हैं, ऑल्टरनेट मेडिसिन्स। तो रूट पर जाकर हमें अगर पता चले तो उस पर कॉज करने पर कोई भी जो है एलिमेंट नहीं होते। ये थेरेपी मैं करती हूँ विदाउट टच एंड विदाउट मेडिसिन। एनी एलिमेंट एंड एनी डिजीज़, 3rd स्टेज 4th स्टेज का कैंसर पेशेंट मतलब जो भी है, या अल्जाइमर्स वाले जो भी जैसे भी हैं, सो वो मैं रूट में जा कर के एंड इन 21 डेज टाइम आई क्योर इट। ठीक है। अब वो जो यूरिनरी की जो बात हो रही थी, तो उसका ये है। इससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि 4 चीज़ें आप बिल्कुल लिख लें, उसको ध्यान कर लें। सबसे पहला है, हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, इट्स अ वेरी प्रेशियस लाइफ, फर्स्ट वन। ओके, द सेकेंड वन है, आवर पर्पस इन लाइफ इज फिक्स्ड, वो वहाँ से ऑलरेडी चली हुई है, एंड वो जो यूनिवर्सल प्लान में खींचेगी ही खींचेगी, उसी ओर को मोड़ती है। तो मुहावरे भी बहुत सारे बने, जब उसकी गीदड़ की मौत आती है तो क्या शहर की ओर आता है, ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। या एक्सीडेंट होता है तो मौत खींच के ले जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो साइंस भेजे जा रहे थे उसको डेसिफर या डिकोडिंग नहीं हो पाया था,
3 चांसेस जरूर हर एक को भेजे जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम आता है, मतलब चैलेंजेस, प्रॉब्लम इज़, गुस्सा आ जाता है ना, भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, अरे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गुस्सा होने की बात नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उस सम को प्रॉब्लम ही बोलते हैं। तो उस प्रॉब्लम या उस सम के 7 सोल्यूशन होते हैं, 7 सोल्यूशन उसी में होते हैं। अब ये हमें देखना होता है कि वो हम 7 कैसे देखें उसको। तो दूसरा ये हो गया। और इस पर्पस को चुनने का हमें कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग वहाँ पर है, उन्होंने जो भेजा हुआ है वो ऐसे ऐसे बोब होके आ रही है। तो हम मान लीजिए यहाँ हैं और यहाँ तक हमें आना है, तो वो हमें दिखा रहे हैं और यहाँ तक ले आएंगे, एंड उसका बार दिया हुआ है 7 जो है बर्थ्स है। उसके बाद हम वापस जो है 84 योनीस जो है, 84 लाख्स ऑफ योनीस जो है, उस साइकिल में वापस चले जाएंगे अपने कर्म के हिसाब से जो हमने किए हुए हैं ना। भीष्म पितामह जब शरशैया पे सोए हुए थे, तो उन्होंने, इच्छित मृत्यु का वरदान था, उसके बावजूद भी नहीं जो है वो उनको मृत्यु प्राप्त हो रही थी। तो वो जब अपना एडमिन का वो सारा दे रहे थे, तब उन्होंने कृष्णा से पूछा था ये क्यों कान्हा, तो उन्होंने कहा था आप पीछे जाओ। तो वो गए 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 38th बर्थ जो था वहाँ तक उन्हें जाना पड़ा, और वहाँ पे जो उन्होंने किया था उसका उनको ये मिला था। वो फल नहीं, मतलब उसका वो कर्म का वो, हाँ सो वो सारा कुछ डीएनए में जो है स्टोर्ड है। दैट्स व्हाई आई सेड पैटर्न जो है हमारा होता है, सामने वाले का नहीं होता है। पैटर्न इज वेरी मच इन आवर सेल्व्स, नॉट उधर, क्योंकि विद इन को चेंज करना है, जो जा रहा है वही आना है। तो यहाँ से गया तो यहीं आना है ना, बीच में कहाँ चला जाएगा। तो जब हम बैलेंस करते हैं तो वो जो पैटर्न डीएनए का है वो चेंज होता है। यस यस, वही तो वो अभी एक एग्जांपल आपको देने जा रही हूँ, ये जो 2 आपको बता रही हूँ, तो उससे आप उसे करें, मतलब जिसको है वो करे, जिसे नहीं है वो ना करें। एक एग्जांपल दिया है, ऐसे जो भी है जिसका पर्सनल कुछ है तो वो आप मुझे फ़ोन नंबर्स वगैरह मैंने दिए हुए हैं, आप इस पर मुझसे पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है, जो कुछ भी हमें पाना है वो हमें स्वयं को पाना है। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे भूख लगी है और आप खाना खा ले तो मेरा पेट भरेगा। इसी तरह से कर्म अगर मुझे अपने करने हैं, क्योंकि कर्म तो मैं ही कर रही हूँ, तो मुझे ही वो अपनी ही कैपेसिटी में करना पड़ेगा। तो जब मुझे अपनी ही कैपेसिटी में करना है तो इधर उधर 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 क्यों पूछूँ, बिकॉज ये भी पता है कि जजमेंट के लिए ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है। हम ये कहते तो है या सुनाया तो गया है, हाँ भगवान देख रहा है, सब देखता है, उसकी आंखें हैं, बट हमारे अंदर ही है, हम खुद देख रहे हैं। वी नो दैट। क्यों? क्योंकि सत्य एक ही है, सत्य को जाने के मार्ग अलग हो सकते हैं। इज इट क्लियर? कैसे? अब सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, ठीक है, सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, ये तो सत्य है ना। मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये दिशा जो भी है यही मेरा जो है वो पूर्व है, ठीक है। या अगर मान लीजिए मैं किसी दिशा की ओर खड़ी हूँ, ये आपकी जो है चंद्र नाड़ी है और ये आपकी जो है सूर्य नाड़ी है, ठीक है। ये ऐसे क्रिस क्रॉस होती है और आकर के ये यहाँ पर जो है, यहाँ से जो निकलती है आपका कुंडली, बीच में आपका सुषुम्ना है। ये जो आपने क्रिस क्रॉस किया, ये क्या है, मतलब जो दिया है तो रिसीव के लिए पावर सूर्य, मतलब ये यहाँ आता है और ये यहाँ जाता है ना। इसीलिए अर्धनारेश्वर में जो है ये साइड जो है मैन का है और ये साइड जो है वो फीमेल का है। इसलिए जब शादी में भी आप बैठाते हो तो इधर जो है हस्बैंड बैठता है और इधर जो है लेफ्ट में जो है वो पत्नी बैठती है। हैंड इसी तरह से ब्रेन का भी है, जो लेफ्टी है वो राइट का ज़्यादा उसका वो रहेगा, और जो हाँ, और जो ये है इस साइड का वो इधर को ज़्यादा रहेगा। और फिर 4th जो है संतोष कर लो, जो है उसमें संतोष कर लो। ज़्यादा पाना है
उसके लिए प्रयास करो सही मार्ग से। अब नाउ अगर कोई ये ऐसा यूरिन का किसको प्रॉब्लम है, या फिर जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, तो वो पैटर्न लिख लीजिए। क्या पैटर्न है वो? एंजाइटी, एक्यूट एंजाइटी होगी, और होल्डिंग ऑन टू ओल्ड आइडियाज़, वो जो मैंने पहले देखा हुआ था अभी मैं उसी पे ही चलना चाहती हूँ, क्योंकि दैट वाज द कंफर्ट जोन, वो मैं देख के आ रही हूँ, वाह क्या दिन थे। तो आई एम जस्ट स्टक इन द पास्ट, मेरा जो गढ़ना है वो अभी गढ़ना है, वहाँ से तो मैं निकल के आ गई, वो 20 साल 25 साल 45 साल पहले की बात थी। आज अगर मुझे क्रिएट करना है वही चीज़, तो मैं इसी में इसी क्षण में क्रिएट करूँगी। सो वो आइडियाज़ जो है उसमें रेफरेंस के लिए तो जा सकती हूँ कि हाँ मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही थी, वो मैं अभी यहाँ क्रिएट कर सकती हूँ, उसको अपने जो मीन्स हैं मेरे उसमें मैं उसे क्रिएट कर सकती हूँ। एंड देन फियर ऑफ लेटिंग गो, फियर ऑफ लेटिंग गो, ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल एंड यस, जब हम ये फियर अपने अंदर ले लेते हैं वहाँ से बॉडी जो है डिस्टर्ब होना शुरू होती है, और वो फर्स्ट सिम्टम दिखाती है, उसके बाद वो एलिमेंट्स अंदर आते हैं और उसको एंट्री हम ही देते हैं। ठीक है, लेटिंग गो का क्या मतलब है? जाने दो, छोड़ो, वो वापस आना है, क्योंकि विच गोज दैट कम्स बैक। सो लेकिन हम पकड़ के बैठे, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति बाहर गया, पता नहीं किसको किसको देख रहा होगा। सो दैट इज़ क्लच कर रहे हैं। अब आप सैंड लो, सैंड जो है हाथ में लेकर इसमें मुट्ठी में जोर से करो और उसके बाद छोड़ो, क्या होता है? धीरे 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 नहीं, एक साथ पूरा, है ना। सो इसलिए लेट गो, छोड़ दो, वो पीछे था। अभी की परिस्थिति में देखो, अभी अभी मुझे क्या चाहिए? अभी कोई तकलीफ है? इस वक्त कोई तकलीफ है? अभी आप सब बैठ गए आराम से सुन रहे हो, कोई तकलीफ है? वहाँ रेफरेंस के लिए जा सकते हैं, अगर कोई सूदिंग रेफरेंस वाला है वहाँ से उसे यहाँ ला सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो उसमें हमें क्या चुनना है? हम रेफरेंस के लिए जाएंगे ना, जो दिया हुआ है मैथ्स का जो है प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, पर यहाँ पर माइनस प्लस प्लस जो है, प्लस माइनस जो है यहाँ पर अगर माइनस का थोड़ा कम है, मतलब कर्म जो है वो थोड़े से माइनस वाले हैं बट प्लस वाला बहुत तगड़ा है, तो यहाँ प्लस हम ले जाएंगे, वो डबल द वे में हमें आ जाएगा, तो ये माइनस जो है हट जाएगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब वो कट जाएगा, तो वो बैलेंसिंग उसमें आ जाएगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। सो लेट गो जो है वो करना है। एंड बीइंग पिस्ड ऑफ, हमेशा ये हम फील करते हैं कि जो है ये जानबूझ के जो है हमें ये कर रहा है, ये जानबूझ के, इसकी तो नेचर ही है, ये मुझे परेशान करना ही चाहता है। सो दैट इज़ देयर। सो ये आप इसको हटाने के लिए आपने क्या करना है? सिंपल है, रात को 3 बार जो है बस ये बोल करके आपने सो जाना है। दिस इज़ गिविंग an order to your DNA or to your subconscious mind which will work over. क्या बोल करके सुना है? हाँ मैं दे रही हूँ। I comfortably and easily, I comfortably and easily, I comfortably and easily release the old, release the old, release the old and welcome the new, and welcome the new in my life, in my life. You should make space. I am safe, I am safe. I comfortably and easily release the old and welcome the new in my
लाइफ, आई एम सेफ। क्योंकि हमने पैटर्न्स ब्लॉकेज बना रखा है ना, अब तो मैं हो गई 50 साल की, अब क्या ज़िंदगी है, अब मैं क्यों क्या खुश होने का अधिकार नहीं, अब तो मैं बो गया, अब तो मेरे पैर लटके हुए कब्र में, अभी क्या है। बट जब तक आपका पर्पस नहीं करोगे तब तक वो वैसे आपको दिन देखने ही पड़ेंगे। एंड यू अट्रैक्ट, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक, लाइक अट्रैक्ट लाइक। नाउ लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका डायरेक्शन वाइज ऐसे ही होता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो अब लाइक को अट्रैक्ट करेगा ना। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मान लीजिए ये ईस्ट नहीं है, बट मेरा तो ईस्ट यही है ना, तो मेरा नॉर्थ भी यही है, और ये साउथ डाउन जो है वो साउथ है, और ये ईस्ट है, मतलब ये जो है यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, मतलब मैं तो कांस्टेंट खड़ी हूँ ना, ये पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूम रही है, इसलिए ये यहाँ पे यही हम ईस्ट में पैदा होने के बाद वेस्टर्न्स को जो है वो कर रहे हैं, बट उसमें भी एक पॉइंट बनता है ना। वेस्ट कहने के लिए तो वेस्ट है, बट क्या है आपका, ये जो आपका चंद्र नाड़ी है, दिस इज व्हाट वेस्ट है ना, और ये जो सूर्य नाड़ी है लेफ्ट साइड का, दिस इज ईस्ट। सो इसीलिए हम वहाँ से यहाँ इम्बाइब कर रहे हैं उसको, जो चीज़ वहाँ की ऑब्सोलीट हो जाती है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, और हमें लगता है वाह वाह, जबकि जीरो तो हमने दिया हुआ है, इंडिया ने ज़ीरो दिया हुआ है, जिसके आगे लगेगा जिसके पीछे लगेगा दोनों की वो बना देगा, है ना। और फिर 1 नंबर पे सूर्य खड़ा हुआ है, 1 नंबर इज फॉर सन, तो हम उसे छोड़ करके यहाँ से वहाँ, ये सारा कुछ तो हमने ही दिया हुआ है, ये जितने भी हैं एंशिएंट में तो ये सब कुछ हमारा ही बनाया हुआ है ना। ज़ीरो जो हमने जो किया है, या फिर ये जितने भी नाद की जो बात बता रही हूँ, तो यहीं से तो उन्होंने लिया हुआ है। आज जितने बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, ये सब कुछ जो बने हुए हैं, तो ये यहीं से तो सारे गए हुए हैं इसी के ऊपर। और फिर नेचर को रीड करके, अभी आप देखो कि ये चिड़ियाएँ जो हैं, इनकी भी लैंग्वेज होती है ना, है। तो साधु सन्यासी क्यों जाते हैं हिमालय में या जंगल वगैरह में, क्यों चले जाते हैं? वो इसलिए चले जाते हैं कि वहाँ ये यहाँ का ये सब नहीं रहेगा ना, अपने आप को कंपोज करने के लिए जाते हैं। पर कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ बैठ कर के भी कर सकते हैं। अगर हमने अपने आप को सही उसमें रख दिया है डायरेक्शन में, तो हम अपने आप को यहाँ भी कर सकते हैं। तो वहाँ वो ये सब रीड होते हैं, नेचर वगैरह का जो रीड होते हैं। अभी एक चिड़ियों का ना झुंड बैठा हुआ था, तो वो कैसे था, नीचे सब जो है छोटी छोटी थी, एक बुढ़ी दिखने वाली चिड़िया जो है ऊपर बैठी हुई थी। तो वो चीची 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 अपनी बातें कर रहे थे। तो वो जब बातें कर रहे थे तो उसको जब ध्यान से सुना तो उसमें कुछ वो बोल रही थी। तो वो क्या बोल रही थी, कैसे वो समझ में आया, वो चिड़िया, मतलब अब वो जो है सबसे एज ओल्ड थी वो, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा थी, और ये सब जो है यूथ वाले थे। तो वो उन्होंने रोज़ एक जगह उड़ के जाते थे, पास में वहाँ बहुत सारा उनके लिए दाने रखे हुए थे, तो वो रोज़ उस पर से चुग ले रही थी। तो वो जो है वो एकदम से शेयर वो कर रही थी कि नहीं, यहाँ नहीं जाना है हमें, आज मेरी बात सुनो, हम आज दूसरी जगह चलते हैं, क्योंकि ये पास की जगह है, बारिश का मौसम अभी आने वाला है, तो ये हमें ईजी पड़ेगा इसको ले देकर, और अब हम रोज़ इसे ही ख़त्म कर देंगे तो फिर उस वक़्त हमें तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि हम उस वक़्त ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकते हैं। सो ब्यूटीफुली, मतलब उनके भी लैंग्वेज है, अगर आप ध्यान से नेचर को देखो तो हर एक चीज़ वो बताती है, बिकॉज दीज ऑल आर यूनिवर्सल ट्रुथ्स। 18 यूनिवर्सल लॉज के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है यूनिवर्स चलता है, जिसको कि हमें अगर हम फॉलो करें तो ये पूरा का पूरा शरीर जो है स्वस्थ और निरोगी हम रख सकते हैं। ये जस्ट 7 मिनट्स की एक क्रिया है, प्रोसेस, जो मैं अपने वर्कशॉप में देती हूँ। तो उसमें जो है आप ये पूरा का पूरा, मुझे पता है बॉम्बे की भागती दौड़ती दुनिया है, इसलिए वो सिर्फ 7 मिनट्स का है, तो आप 7 मिनट्स में जो है उसको वो चीज़ कर सकते हो। ओके, इसका और अगर ठंड लगती है या फिर ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि ये मुझे थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ तो फिर मुझे ठंड लग रही है या वैसा सेंसेशन हो रहा है, तो उसमें उसका क्या है
क्या है? मेंटल कंट्रैक्शन, मेंटल कंट्रैक्शन, पुलिंग अवे एंड इन, पुलिंग अवे एंड इन। ये हमें पता नहीं चलता, अंदर जो है थॉट प्रोसीजर चलते रहते हैं और हमें लगता है कि शायद वेदर बदल रहा है। जैसे आपने कहा ना कि बाहर एनवायरनमेंट का भी हो सकता है, वातावरण का भी हो सकता है, या सामने वाले का, नहीं, हमारा अंदर ही सब कुछ चलता रहता है और वही चीज़ हम बाहर देखते हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो मेरे में होगा वही तो मैं अट्रैक्ट करूँगी ना, दूसरा कुछ तो नहीं करूँगी, क्योंकि वो जो है ट्रुथ ही वो है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वैसे ही चलता है। तो ये है। एंड देन डिज़ायर टू रिट्रीट, डिज़ायर टू रिट्रीट, रिट्रीट बने पीछे रिसीड हो जाना। तीव्र इच्छा ये हो जाती है कि नहीं अब बस मेरे बस का नहीं है जो, और इसमें ऐसा जो है सिंड्रोम दिखने लगता है, लीव मी अलोन, तो वो यस वो सिकुड़ जाता है। तो ठंड की वजह से जैसे होता है। हाँ, ठंड में, इसीलिए वो ठंड का जो है वो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मतलब क्या है, क्योंकि सामने से झेल रहा है ना बार बार सामने से। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कुछ चीज़ आपकी ओर आ रही है वो बाहर की नहीं है, आप अपने पास से बाहर भेज रहे हो, इसलिए वो आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। और उससे घबराइए नहीं, वो आपको समझाने के लिए आई है, बिकॉज लाइफ इज़ एक्सपीरियंस। सो लेसन, लर्न द लेसन और आगे इवॉल्व हो, क्रॉस करो उसको, उस लेसन को लर्न करो, वो चीज़ को देखो कि कौन सी चीज़ आपको ये चीज़ दे रही है, ये पैटर्न आप में क्यों दे रही है, और उसको देखो और उसको आगे बढ़ो। वो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो बताया था ना, जो आपको रेमेडी रात को 3 बार करने हैं और सुबह जैसे ही उठोगे वैसे भी 3 बार सिर्फ बोलने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, और कितना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो इसी तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सो आई कैन गिव यू कि उसके कौन कौन से रूट कहाँ कहाँ हैं और किस लिए ये हो रहा है, एक्यूट भी जो चीज़ें हैं, एंड देन वो आपकी रेमेडी वहाँ से हो सकती है। इसमें आप ले लीजिए, आई एम सेफ एंड सिक्योर एट ऑल टाइम्स, आई एम सेफ एंड सिक्योर एट ऑल टाइम्स। Love surrounds me, love surrounds me and protects me, and protects me. All is well, all is well. Now ये आप अपने आप को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। Now क्या हो जाता है इस एज में, क्या होता है अभी, जैसे बच्चे रख नहीं रहे हैं, घर पे नहीं रख रहे, तो इनसिक्योरिटी इन हो गई। अब जब आप में इनसिक्योरिटी इन हो गई तो आप हर चीज़ जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, मतलब चैनल आपने ही दिया वो चीज़ों को अट्रैक्ट होने के लिए, तो वो सीधे जूम करके आप में अंदर आ रही। अब फाइटिंग की तो कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि एक से एक चेन बनाते जा रहे हो और उसी में डंप होते जा रहे हो, और लास्ट में आपको क्या बोलते हैं, मुझे निकालो, मुझे निकलना है। तो कई बार जो है गुस्सा हो जाता है, कई बार आप देखोगे जो व्यक्ति है वो बिल्कुल गुमसुम हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है, या अगर उसमें उतना है कैपेसिटी जो यंग एज से उसने वैसे रखा है मेंटेन, तो हो सकता है बॉडी के किसी और पार्ट पे वो एलिमेंट दिखाएगा आपको, है ना। और ये सीधा का सीधा किसके ऊपर है ये, दिस इज़ योर मणिपुर चक्रा, सूर्य थर्ड चक्रा जो है दैट इज़ मणिपुर चक्रा, वो आपका पावर का चक्रा है जो कि सूर्य से गवर्न होता है। तो उसके लिए अब मैं धार्मिक भी बता सकती हूँ आपको कि किसकी किसकी क्या पूजा करनी है, और वो भगवान भी जो है बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, बट उसमें अभी क्यों जाना। इसलिए बोलते हैं ना हर एक चक्र में देवता का वास है। यस सो वो जो है आप ये सिर्फ कर लो, ये बिल्कुल सॉलिडिफाई करता है। इसको सिर्फ करने के लिए क्या खाली बोलना नहीं है, यू हैव टू फील इट, ये पूरे खड़े होने चाहिए, तब ये रेजोनेट करेगा, ये पूरी बॉडी में जाएगा आपके। एंड जो रात को जब आप किस लिए बोला है, क्योंकि जब आप सो रहे हो बट वो नहीं सो रहा है, 24 आवर्स 7 days 365 वो जो है वर्क कर ही रहा है वो। सो वो पूरा रिपेयर करता जाएगा, क्योंकि डीएनए इज़ व्हाट, डीएनए में क्या है आपका, सेल, टिश्यू
देन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम सब कुछ इसी में है जो है। पूरा यूनिवर्स। यस।